चैनल में आपका स्वागत है और पेजिंग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों पेजिंग का पार्ट 2 करने वाले थे हम, जिसमें हमारा मेन एक्टिविटी और पेजिंग स्क्रॉल लिस्नर दो क्लास रह गए थे जिनमें कोडिंग करने हैं हमें। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें, इसका पार्ट 1, सो दैट आपको क्लियर समझ में आएगा। और ये सीरीज जो है वो पेजिंग यूज कर रहा हूँ मैं रिसाइकलर व्यू में एंड नेटवर्क में रेट्रोफिट यूज कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं अडाप्टर क्लास पे गया, राइट क्लिक, न्यू एंड क्लिक द जावा क्लास, और मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा लिसनर। नेम इज पेजिनेशन स्क्रॉल लिसनर। यस दोस्तों, हमारा जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का क्लास होगा एंड ये एक्सटेंड करता है रिसाइकलर व्यू डॉट ऑन स्क्रॉल लिसनर। ओके, मेथड मानते हैं प्रोटेक्टेड टाइप का स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड पेजिनेशन स्क्रॉल लिसनर। इसमें लीनियर लेआउट मैनेजर दिस डॉट सॉरी, लीनियर लेआउट मैनेजर को तो हमने डिक्लेयर किया ही नहीं। प्राइवेट लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल टू लेआउट मैनेजर। now it's working. Create a method on scroll. We already control on scroll, this one. Click on that, recycler view, dx and int dy. Okay, now we're going to code int visible item count equal to layout manager dot get child count and total item count equal to layout manager dot get item count, and this int is a first visible item position. So first visible item position equal to layout manager dot find first visible item position first. Yes दोस्तों, okay, now condition if
if is loading, if is loading and not page, last page, last page, if visible item count plus first visible item count, first visible item position is greater than equal to total item count and first visible item position is greater than equal to 0, then load more items. Okay. Now दोस्तों we are going to create protected strap void load more item and this is the public abstract boolean is loading and public abstract boolean is last page. Perfect. So we are going to create a main activity. main activity already created है, इस पे कोड करते हैं. So private static एक टैग ले लेता हूँ मैं, final string tag equal to paging recycler view adapter class call the adapter linear layout manager recycler view progress bar linear layout. ये आपका होगा error layout button for retry. Okay, text view error text and swipe refresh layout.
swipe refresh layout, swipe refresh layout, refresh layout. Now private static final and पेज स्टार्ट इक्वल टू 1। हमारा पेज जो लोड करेगा फर्स्ट से, देन प्राइवेट बूलियन इज लोडिंग, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, प्राइवेट बूलियन इज last page equal to false, default value, private static final and total pages। टोटल पेज हम फिक्स तो नहीं रखते हैं, ट्रायल के लिए मैंने वैसे दे दिया 100, बट आप चाहें तो टोटल पेज आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स से जो चीज़ें गेट होकर आएंगी आप उसको यहाँ पे टोटल पेज में पास कर देना दोस्तों। ये क्योंकि आप टोटल पेज को हार्ड कोड नहीं कर सकते, क्योंकि कल के अगर डेटा इंसर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है पेज हमारे इंक्रीज होगा। तो पेज इंक्रीज होगा तो जितना हमने स्टैटिक टाइप में जो डिक्लेरेशन किया है वो उतना ही दिखेगा, इसके बाद के पेज की वैल्यू नहीं दिखेंगे हमें। तो उस केस में आप यहाँ पे हार्ड कोड ना करके आप सीधा डायरेक्ट जो रिस्पांस में आपको टोटल पेज काउंट हो रहा है वो आप यहाँ पे सेट करा देना है इसमें। प्राइवेट इंट current page equal to page start। now private API interface है ना हमारा, API interface। okay, now we are going to typecast। recycler view equal to find view by id dot r dot id dot recycler view, progress bar equal to find view by id r dot id dot progress bar, error layout equal to find view by id r dot id dot error layout, btn retry equal to find view by id r dot id dot retry yes, okay। error text equal to find view by id r dot id dot error text cause swipe refresh layout equal to find view by id r dot id dot swipe layout, okay। adapter class इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, adapter class main activity dot this equal to new
adapter callback. Okay, retry and here the method create करते हैं load next page. अभी इसको क्रिएट करता हूँ मेथड को. Now linear layout manager equal to new linear layout manager main activity dot this linear layout manager dot vertical false recycler view dot set layout manager linear layout manager recycler view dot set adapter set not adapter not right now set item animator new defaulter item animator. Yes, and now the recycler view dot set adapter the adapter class. Perfect. Now going to add on scroll listener in recycler view. Okay, दोस्तों, so recycler view dot add on a scroll listener new pagination scroll listener. Okay, load more items. Yes, is loading. अगर true है then current page increment होगा हमारा and also load next page method. Is loading. Yes, is loading page. Okay, is last page. Is last page. Now दोस्तों, going to init service and load data. Init service and load data. API interface equal to retrofit client dot get retrofit dot create API interface dot class. Now load फर्स्ट पेज. दोस्तों BTN ट्राई पे भी BTN ट्राई का भी सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू
and the load first page and refresh layout dot set on refresh listener this context and do refresh। एक मेथड क्रिएट करेंगे डू रिफ्रेश। ओके दोस्तों, कूल। अब हमें लोड फर्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज एंड डू रिफ्रेश, इन तीनों को हमें क्रिएट करना है मेथड दोस्तों। तो दोस्तों डू रिफ्रेश के लिए पहले करते हैं क्रिएट प्राइवेट void डू रिफ्रेश। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यस, एंड प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, मतलब कि रिफ्रेश के टाइम पे हमारी प्रोग्रेस बार विजिबल होना चाहिए। इफ उससे पहले लोड फर्स्ट का क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। क्रिएट लोड फर्स्ट। ओके दोस्तों, इससे पहले हमें वी नीड टू क्रिएट कॉल रिस्पॉन्स के लिए। सो प्राइवेट कॉल retrofit dot model response, model response call method फंक्शन बनाया एंड द रिटर्न API इंटरफेस डॉट गेट ऑल डेटा, एंड इसमें मैं पास करने वाला हूँ यूजर फीड एंड मोड में यूजर फीड गया। यूजर टाइप में मैंने सिटीजन डाल दिया दोस्तों। मैं फील्ड में मैं पैरामीटर में पास कर रहा हूँ डेटा, कॉमा मैं करंट पेज, ओके परफेक्ट। Now we can do a do refresh. So if model class response is executed, then model class cancel. Okay, now set the adapter class dot get item get model class dot clear, adapter class dot notify
data set change. Perfect. And here we go, load this method. Load first page and swipe refresh layout dot set refreshing false. Perfect. Now we are going to create a load first page method. So now we are going to create load first. Hide error view, इसका मेथड बनाऊंगा आपको. Now current page equal to page start. Model class response call dot control new callback. रिस्पॉन्स में ट्राई कैच लेते हैं दोस्तों. इफ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट get status equal to 200. Then list of model class results equal to response equal to fetch results and here we go, pass the response. Progress bar dot set visibility gone. Adapter class dot add all results. If current page is less than equal to total pages, then adapter class dot add loading footer, else is last page equal to true. दोस्तों fetch result create this method. Okay, we are going to create a model class. Model class equal to
response dot body model response response dot body, and the return model response dot get data। परफेक्ट, एंड ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, now we are going to in the else part, else if response dot body dot get, एरर हैंडल कर रहा हूँ दोस्तों, इक्वल टू, अगर 203 आता है तो यहाँ पे एक टोस्ट दिखा देते हैं, नो मोर डेटा, एंड प्रोग्रेस बार हमारा गॉन, एंड दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कैच, लॉक कर देते हैं। ओके, सो लोड फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ऑन फेलियर में भी हम प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन एंड टोस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, दैट इज something went wrong। okay दोस्तों, now we are going to create load next page, so here we go, create a method load next page, model class response call dot enqueue new callback model response, and adapter class dot remove loading footer, perfect, is loading, okay, is loading equal to false, list of model class equal to results, fetch result and pass the response, adapter dot add all results, इफ कंडीशन दोस्तों इसमें भी लगा देते हैं, करंट पेज नॉट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट टोटल पेजेज, adapter class dot add loading footer, else is last page equal to true। okay, now दोस्तों going to टोस्ट लगा देता हूँ, टोस्टर एक्सेप्शन एरर that something went wrong, परफेक्ट। सो दोस्तों लोड नेक्स्ट पेज मेथड भी कंप्लीट हो गया हमारा। ना दोस्तों अब हम
इसमें 2 एरर आ रहे हैं, क्या है? ओके, एंड व्हाट इज सेकंड एरर? हाइड एरर व्यू, create hide error view, click if error layout dot get visibility equal to अगर विजिबल है then error layout dot set visibility gone, progress bar dot set visibility visible. Okay, ना दोस्तों, सो एरर व्यू क्या कह रहा? आर्गुमेंट फाउंड, आर्गुमेंट यस दोस्तों, आर्गुमेंट फॉर व्हाट? ओके, लेआउट मैनेजर के लिए, यस, लीनियर लेआउट मैनेजर, नाउ इट्स परफेक्ट। दोस्तों एक चीज़ और है, मेन एक्टिविटी में जाके हम परमिशन ज़रूर देना है हमें इंटरनेट की, इंटरनेट परमिशन दे दिया। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि रेट्रोफिट क्लाइंट में हमारा जो HTTP है वो सिक्योर नहीं है, तो उस केस में अगर आप डेटा अभी आप फेच कराओगे तो वो आपको ब्लैंक आएगा, शायद वो ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उस केस में दोस्तों आप मैनिफेस्ट फाइल में जाके, एप्लीकेशन में जाके आप यहाँ पे ट्रैफिक टाइप करेंगे, यूजर क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, आप यहाँ पे ट्रू कर दें। अगर आपका URL सिक्योर है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपका URL सिक्योर नहीं है देन आपको ये टैग लगाने की ज़रूरत है। सो दोस्तों बिना देर किए इसको मैं रियल टाइम अपने मोबाइल एप्लीकेशन में रन कराता हूँ दोस्तों, एंड लेट्स सी द आउटपुट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस कोड। ओके, okay, it is taking so much time to load the data and crash. let's see, देखते हैं क्या क्रैश है। दोस्तों ऐप क्रैश हो गई है, लेट्स सी। कहाँ रन कराता हूँ दोबारा से। सो दोस्तों फाइनली वी फाइंड द एरर, एंड द एरर इज दैट एडाप्टर क्लास में हमने रिटर्न में सिर्फ नल किया था, इस चक्कर में एरर एक्सेप्शन दे रहा था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें व्यू होल्डर को रिटर्न कराना होगा। सो व्यू होल्डर रिटर्न, एंड दोस्तों एक चीज़ और, आइटम लिस्ट में आप गए और यहाँ पे हमें मैच पेरेंट जो कर रखा है हम इसको रैप कंटेंट कर दें, एंड देन रन दिस प्रोग्राम अगेन।
तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो ये ऐप हमारा रन हो चुका है। नाउ इट्स वर्किंग फाइन। या इट्स वर्किंग परफेक्ट। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए। और इस प्रोजेक्ट का मैं लिंक अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आप इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली डाउनलोड करके भी आप अपने सिस्टम में रन करा सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो दोस्तों या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर मुझे आप लाइव सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। और आगे मैं और ज़्यादा ऐसी इससे रिलेटेड एडवांस लेवल की वीडियो मैं दोस्तों बनाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।